The next is the dualism in India and the problem of uneven income distribution. This is the topic of the today's lecture. Firstly, we will focus on the dualism in Indian economy. The concept of dualism, when associated with an economy, basically implies the existence of two contrasting societies within a country. दो अलग अलग तरह के समाज जब एक ही देश में देखने को मिलते हैं तो ड्यूअलिज्म जैसा शब्द वहाँ पैदा हो जाता है. इंडियन इकोनॉमी दैट वे कैन बी कैटेगराइज एज ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी. दोहरी अर्थव्यवस्था इसको कह सकते हैं. भारत में यदि कहा जाए तो ये दोहरी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है जहाँ पे अलग अलग तरह के समाज एक साथ हमें देखने को मिलते हैं. देयर आर टू इंडियाज विद इन इंडिया. यदि कहें कि भारत में एक साथ दो भारत हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी. वन इंडियाज इज़ वेरी रिच, एफ्लुएंट एंड एंजॉइंग ऑल लग्जीरियस ऑफ लाइफ. भारत का एक भाग जहाँ जीवन को बहुत दूसरे ढंग से जिया जाता है, जहाँ पे लग्जीरियस लाइफ है, जहाँ पे ग्लैमरस लाइफ है, जहाँ पे रिच सेक्शन अपनी लाइफ को स्पेंड करता है. और वहीं इन कॉन्ट्रास्ट द अदर इंडिया इज़ एक्सट्रीमली पुअर वेयर पीपल डू नॉट हैव एन एक्सेस टू इवन अ सिंगल मील अ डे. वॉट टू टॉक अबाउट अ रूफ ओवर देयर हेड्स. वहीं पर एक भारत ये है जहाँ पर कुछ लोग एक वक्त की रोटी भी नहीं अपने लिए जुटा पाते हैं, जिनके पास अपने सर पर अपने आप को छुपाने के लिए एक छत भी नहीं होती है. देयर इज़ वन इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडर्न इकोनॉमी एंड साइड बाय साइड देयर एग्जिस्ट अनदर इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेडिशनल प्राइमिटिव इकोनॉमी. एक तरफ भारत को हम मॉडर्न इकोनॉमी कहते हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ इसको हम ट्रेडिशनल प्राइमेटिव इकोनॉमी या परंपरागत अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं. देयर इज़ अ अर्बनाइज्ड इंडिया वेयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग अ डिसेंट लाइफस्टाइल इन रिलेटिव स्ट्रॉन्ग, एंड देयर इज़ rural India whereas infrastructure and services such as road, electricity, communication, drinking water necessary for the reasonable living are in a poor shape. जहाँ एक तरफ वो जीवन है जहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अच्छी सड़कें हों, अच्छा टेली कम्युनिकेशन हो, पीने का पानी हो, वो सभी चीज़ें होती हैं. वहीं दूसरी तरफ रूरल इंडिया में जो रूरल पीपल्स हैं वो इन सभी सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित होते हैं, वो इसको एसेस नहीं कर पाते. इवन विद इन द अर्बन इंडिया यू हैव पीपल लिविंग इन posh localities and side by side we see an ugly sight of the people living in slums. Then devoid of any basic amenities. A comparative analysis of some of the states of the country on the basis of some parameters. So some states are very rich in manner of the infrastructure facilities, and some states are very backward. So this is the symptom of the dualism face of Indian economy. Here
I'm taking some example, just like I'm taking Tamil Nadu, the state of the Tamil Nadu. Urban total population percent in 2001 43.9. Maharashtra, Delhi, these states are very rich, but Orissa, Bihar, these are poor states. So this is a very critical situation in India and having two faces. One face is very rich and other face is poor. In manner of the employment, in manner of the living standard, in manner of the infrastructure development, in manner of the medical facilities, in manner of the some other types of the opportunities. So the dualistic character of Indian economy is more pronounced when we compare various states of our country on the basis of poverty levels. Poverty line, as per the estimates of the Planning Commission in the 9th 5-year plan, at all India level, 36% of total population lives below the poverty line. The states with higher percentage of population below the poverty line are the Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, and the state with relatively lower percentage of population below the poverty line are the Punjab, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, and the Kerala. Besides the above mentioned parameter, dualism in India economy can also be seen on the technological front. There are few sectors of the economy like agriculture, small scale industries, handicrafts, and cottage industries which still make use of the traditional and outdated technology. This has not only an adverse impact on the productivity of the sector, but also leads to low income generation of the people associated with these sectors. यदि इंडियन कंस्ट्रक्ट में हम ड्यूअलिज्म को देखें तो एक पैरामीटर पावर्टी लाइन को लिया जा सकता है. पावर्टी लाइन के बेसिस पे जो प्लानिंग कमीशन ने अपने आंकड़े बताए हैं उसमें बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आसाम और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पावर्टी है वो बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन, वहां पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं. जबकि पंजाब ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया या ऐसे स्टेट जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरला. इसके अलावा भी कुछ और भी पैरामीटर्स यदि हम लोग या नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स को लें तो इंडियन इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड पर भी बैकवर्डनेस को देखा जा सकता है कि कुछ पर्टिकुलर जो सेक्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड पे काफ़ी पीछे हैं और कुछ आगे हैं. जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स या एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, हस्तशिल्प उद्योग, ये सब ट्रेडिशनली और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करके अपना प्रोडक्शन करते हैं. जबकि वहीं पर इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाईली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपना प्रोडक्शन करती हैं. तो ये कहीं ना कहीं पर इंडिया में ये ड्यूअलिज्म भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया एक है लेकिन यहाँ पर दो तरह की सोसाइटी रन कर रही हैं. नेक्स्ट जो है वो है पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. यदि हम बात करें कि आय के वितरण, भारत में आय का वितरण किस तरह का है तो अब हम लोग उस पर बात करते हैं. देयर इज़ अ
there is lack of statistical information by way of which one could directly estimate income distribution in India. Most of the inferences on income distribution made by various organizations in India such as Reserve Bank of India, National Council of Applied Economic Research and other agencies are based on the data on consumption expenditure obtained from the household survey. Various reports have clearly indicated the existence of wide variation in the consumption expenditure of the different section of the population. हम लोग बात यदि करें पैटर्न ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इतनी सटीक हमारे पास नहीं है, फिर भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रन कर रहे हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, NCAER और भी अदर एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा कलेक्ट किया है या जो उसके लिए पर्टिकुलरली पैरामीटर या बेस जो डिटरमाइन किया है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और हाउस होल्ड सर्वे से उन लोगों ने इस चीज़ को पता लगाया कि वेरियस रिपोर्ट्स हैव क्लियरली इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ वाइड वेरिएशन इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनमें व्यय करने की प्रवृत्ति अलग अलग है। कुछ लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल अलग है और कुछ लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल अलग है। ऐसी कंडीशन में कंक्लूजन जो निकलता है वो यही निकलता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन, कि भारत में जो आय है, आय की असमानता बहुत भारी स्तर पर है। In fact, the Planning Commission in the draft 6th 5-year plan document had observed that the inequality of income for rural as well as urban group would be far greater than the consumption inequalities. The World Bank also collaborated view of Planning Commission in this regard. World Bank भी ये प्लानिंग कमीशन ने जो डाटा दिए या जो अपना ग्राउंड दिया था उससे वो भी एग्री हुआ। और ऐसी कंडीशन में यदि देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाउस होल्ड बेसिस पर इंडियन कंस्ट्रक्ट में सिमिलैरिटीज़ एक्सपेंडिचर को लेकर नहीं है, और जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के उसमें कुछ रिच सेक्शन है, कुछ मिडिल सेक्शन है और कुछ पुअर सेक्शन है। द रिच आर वेरी रिच एंड द पुअर आर एक्सट्रीमली पुअर। सम ऑफ द रीजन्स फॉर द uneven distribution of income in India are: the first is the inequalities in land ownership and concentration of tangible wealth in the rural sector. दूसरा है private ownership of the industries, trade and business. Third, urban bias in private investment. Fourth है inequality in credit facilities provided by the bank and the financial institutions. And defective implementation of various industrial and economic policies of the government, leading to greater concentration of wealth and income in the hand of few private individuals, and the corrupt practices of bureaucracy, politicians and businessmen. तो इंडियन कंस्ट्रक्ट में यदि देखा जाए तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जो इनकम के पीछे जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो सबसे पहला है कि लैंड ओनरशिप में इनइक्वालिटीज़ हैं और ज़्यादातर जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो रूरल सेक्टर में हैं। दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप इंडस्ट्रियल सेक्टर में
प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। अर्बन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू द रूरल सेक्टर। इसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी अनइक्वल है, उसमें भी इनइक्वालिटी है, समानता नहीं है जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। रूरल एरियाज़ में ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये बहुत मुश्किल से मिल पाती है, वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा रिच नहीं है, या ऐसा इसको कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे कम है, बैंक कम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कम है, इसलिए ईजिली लोन नहीं मिल पाता है। डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पॉलिसीज़ को बनाती है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसका लाभ, जिसका एडवांटेज वीकर सेक्शन नहीं ले पाता है। इसके साथ ही साथ में करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरशाही है, वो भी कहीं ना कहीं भारत में अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कॉस्ट फैक्टर हैं।